الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ساتھیوں، پچھلے 2 ہفتے سے ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. چونکہ درس قرآن کا مقصد قرآن کا سمجھنا ہے اور قرآن کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو اسی وجہ سے میں نے سب سے پہلے اس سورت کا انتخاب کیا جو عام طور پر ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ. تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم ان سورتوں کی تفسیر سمجھیں گے انشاءاللہ جو عام طور پر نمازوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں. ہر کوئی شخص نمازوں میں ان 10 سورتوں کو ضرور پڑھتا ہے. سورہ الم تر کیف، لإیلاف قریش، ارأیت الذی انا اعطینا، قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، تبت یدا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 10 ایسی صورتیں ہیں جو تقریباً بہت سو کو یاد ہوتی ہیں عام مسلمانوں کو. اگر 10 نہیں بھی ہوتی تو کم از کم ان کے الفاظ سے مانوسیت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کون سی صورت ہے. تو اسی لیے ان صورتوں کی تفسیر کو سمجھنا جن کو ہم عام طور پر دہراتے ہیں روز، تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے گا، ہماری نمازوں میں ایک رونق آ جائے گی. ہم نمازوں میں جو پڑھ رہے ہوں گے اسے کسی حد تک سمجھنے کا بھی ہمیں ملکہ حاصل ہوگا، اور ایک طریقے سے قرآن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق پیدا ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا جو ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر سمجھنے کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ان صورتوں کی تفسیر کو مجھے ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کو استقامت کے ساتھ ان کو سننے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے آپ تمام ساتھیوں کے سامنے سورہ فیل کی آیتیں تلاوت فرمائیں. سب سے پہلے میں ان کا عام سا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد ان کی آیت بآیت تشریح کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بیکار کر دیا تمہارے رب نے ان کی پلاننگ کو، ان کے منصوبے کو؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر بھیجے پرندے جھنڈ کی شکل میں، گول در گول. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریوں کے چھوٹے پتھر پھینک رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کنکریوں نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. تو اللہ رب العزت نے سورہ فیل میں در حقیقت ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے میں ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले आपका एक मौजिजा दिखा दिया लोगों को, गोया कि यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का तरीका यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले कोई आम मुशाहिदे के खिलाफ कोई बात हो जाती है तो उसको इरहास कहते हैं, और इसी तरीके से आपके दुनिया के आने के बाद कोई ऐसी बात कोई सामने आ जाए जो आम मुशाहिदे के खिलाफ हो, उसे मौजूदा कह देते हैं। गोया कि नबूवत की तमहीद थी, नबूवत की बुनियाद थी जो समझाई जा रही थी इस वाक़ये के जरिए। वाक़या यह है कि यमन के इलाके में अबरहा नाम का एक बहुत बड़ा कट्टर ईसाई बादशाह था, बहुत ही कट्टर था अपने ईसाईयतपन में, और मुसलमानों से उसको बड़ी जिद थी। और वो देखता था कि जब भी हज का मौका आता है तो मुसलमान दुनिया जहां भी हैं, थोड़े बहुत ज्यादा, क्योंकि बैतुल्लाह तो उस जमाने में भी था, तो दूर दूर का सफर करके, यहां तक कि यमन उसके अपने मुल्क से भी सफर करके लोग बैतुल्लाह का सफर करने जाते थे। तो उसे इस बात का शदीद हसद था और बहुत गुस्सा था उसे इस बात का कि लोग वहां इतनी दूर क्यों जाते हैं इबादत करने मुसलमानों की। तो चूंकि वो ईसाई था तो उसने एक फैसला किया, उसने कहा कि मैं यमन के अंदर, यमन का जो दारुल खिलाफा था सना, उसने वहां एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, एक बहुत बड़ा इबादत खाना बनाया और लोगों को कहा कि भाई सब के सब तुम आज के बाद यहां इस इमारत का तवाफ करोगे, बैतुल्लाह जाने की जरूरत नहीं। और वो इमारत कैसी बनाई, हीरे जवाहरात से भरपूर, बहुत की कीमती कीमती उसमें पत्थर लगाए और बड़ी इतनी लंबी इमारत बनाई कि लोग जब उस इमारत को मुकम्मल देखते थे तो उनकी टोपियां गिर जाती थी। इतनी लंबी इमारत बनाई, बड़ी शान और शौकत के साथ, बहुत ही ज़ेबो ज़ीनत के साथ, बहुत ज्यादा खूबसूरत इमारत बनाई। और दूसरी तरफ बैतुल्लाह की इमारत थी। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैतुल्लाह की इमारत को किन के जरिए बनवाया? सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी अपने बेटे के साथ, और फिर बुनियाद जब मुकम्मल की तो अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब, हमारी इस टूटी फूटी इबादत को अपने बारगाह में कबूल फरमा। तो अल्लाह ने उनकी इबादत को कबूल किया, उसके नतीजे में उनको इजाजत दी, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज, लोगों को आम इजाजत दो यहां आकर हज करें। जिसको भी मेरा भरपूर ताल्लुक चाहिए हो वो काबे के जरिए अपनी इबादत की प्यास बुझाए। तो लोग खूब से खूब बैतुल्लाह की तरफ आते और इबादत करते, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो बैतुल्लाह की जो इमारत थी वो उस यमन की इमारत के मुकाबले में एक बहुत ही मामूली इमारत थी। उसमें सिर्फ ईंटें लगी हुई थी, ना कोई प्लास्टर था, ना कोई मार्बल था उसमें। उसकी जो असल शान और शौकत थी वो ये थी कि वो अल्लाह के हुक्म से बनाई गई थी और अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने हाथों से बनाई हुई इमारत थी। ये उसकी खासियत थी। तो मुसलमान कैसे अबरहा की बनाई हुई खास इमारत को देखते? तो उन्होंने, मुसलमानों में से किसी शख्स ने गुस्से में आकर उस इमारत के अंदर जाकर गलाजत फेंक दी, पाखाना कर दिया उसके अंदर, और किसी ने जो है ना आग जलाई उसके आसपास और उस इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो अब्राहा ने देखा, जो बादशाह था, उसने देखा कि यार मैंने जो इमारत बनाई थी जिस मकसद से, ये तो उल्टा कोई अलग ही काम किया जा रहा है। तो उसने गुस्से में एक कसम उठाई, एक हलफ उठाया कि मैं जब तक मुसलमानों के काबे को गिरा ना दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उसने ये कसम खाई। और चूंकि हुकूमत का अपना एक गुरूर होता है, मनसब का अपना गुरूर होता है, एक ताकत आ जाती है, एक मनसब आ जाता है, तो आदमी अपने आपे में नहीं रहता। तो फिर वो बड़बड़ाता बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े दावे करता है। तो अबरहा ने भी ऐसे ही दावा किया, अपनी हुकूमत के नशे में, अपने मनसब के नशे में, अपनी बादशाहत के नशे में, कि भाई मुसलमानों के काबे को गिरा कर ही मैं चैन से बैठूंगा। और उसने बहुत बड़ी फौज तैयार की, शामिल उसने फौज तैयार की और 60,000 पर मुश्तमिल फौज उसने तैयार की और मक्का मुकर्रमा की तरफ उसने सफर शुरू कर दिया। सफर करते हुए उसका बहुत सी जगह
बहुत से अरब कबाइल से उसका मुकाबला हुआ, बहुत से कबीलों से, लेकिन सबको शिकस्त देता रहा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ और दिखाना था। सबको शिकस्त देता रहा, यहां तक के वादी मुहस्सर पहुंचा। ताइफ और मक्के के बीच में एक जगह है जो मक्का मुकर्रमा से बहुत करीब है। वहां देखा कि बहुत से ऊंट चर रहे हैं, तो ऊंटों पर कब्जा कर लिया। तकरीबन 200 ऊंट थे वो। फिर बाद में पता चला कि वो ऊंट किन के थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया कि आपके ऊंट चुराए गए हैं, और फिर साथ साथ ये बताया गया कि एक बहुत बड़ा यमन का बादशाह आया है, अबरहा नाम है उसका, और वो काबे को गिराना चाहता है। तो तमाम अरब कबाइल ने आपस में बैठकर मशवरा किया, और मशवरे के नतीजे में यह तय हुआ कि भाई हम इसकी मुकाबले की सकत नहीं रखते, क्योंकि उस जमाने में बड़ी बड़ी हुकूमतें थी। ईरानियों की बड़ी हुकूमत थी जिसको पर्शियन अंपायर कहते थे, रूमियों की बड़ी हुकूमत थी जिसको रोमन अंपायर कहते थे। अरबों की कोई हुकूमत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने की रियासत बनने से पहले कोई हुकूमत नहीं थी, वो बस कबाइल थे। उनमें कुरैश के कबीले को एक बड़ी अजमत हासिल थी, उसी के जरिए बहुत से मामला चलते थे। बाकी कोई खास हुकूमत का सिलसिला नहीं था। जब हुकूमत नहीं होती तो ताकत का भी कोई खास इंतजाम नहीं होता। तो बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया कि भाई हम इनसे लड़ेंगे नहीं, हम इनसे जाकर गुजारिश करेंगे कि आपने जो हमारे ऊंट चुराए यही हमें वापस कर दें, बाकी आपकी मर्जी जो करना है करें। तो अब्दुल मुत्तलिब अबरहा इस आसरे में बैठा हुआ था कि ये आएगा और मेरे साथ मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे। तो अबरहा बैठा हुआ था, तो इतने में अब्दुल मुत्तलिब आए। और अब्दुल मुत्तलिब चूंकि कुरैश के बड़े खानदानी लोगों में से थे, बनु हाशिम थे, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा कद था, और बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, बड़े वजीह इंसान थे। तो अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को दूर से देखा तो इतना ज्यादा रोब में आ गए कि उनको देखते ही खड़े हो गए अपनी जगह से, और अपनी जगह से खड़े होकर उनको अपने साथ बिठाया और उनको कहा कि भाई क्या बात है, आप बतलाएं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा आपने मेरे ऊंट चुरा ली हैं, मेरे ऊंट वापस कर दो। तो अबरहा ने कहा यार मैं तो बहुत बड़ी सोच लेकर बैठा था आपके बारे में, पता नहीं आप क्या कहेंगे, क्या ऐसी बात कहेंगे, आपने तो ऐसी बात कर दी, आप मेरी नजरों से ही गिर गए। मैं आपके काबे को गिराने आया हूं, आप ऊंट मांग रहे हैं अपने। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसीलिए ऊंटों की हिफाजत का जिम्मेदार हूं। काबे की हिफाजत का जो जिम्मेदार है, काबे की हिफाजत वही करेगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। काबा जिसका है वो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह है। काबे की हिफाजत भी वही करेगा जिसका वो घर है। मैं अपने ममलूक की हिफाजत करता हूं, अपनी मिल्कियत की हिफाजत करता हूं। तो बहरहाल उसके बाद अबरहा ने कहा कि आपके काबा को माज़अल्लाह आज आपका खुदा मुझसे नहीं बचा सकता, माज़अल्लाह। तो उसने बड़े गुरूर के साथ ये जवाब दिया और अब्दुल मुत्तलिब को उसके ऊंट वापस कर दिए और उनको रवाना कर दिया। और जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब वहां से पहुंचे हैं मक्का मुकर्रमा, तो तमाम लोगों को जमा करके काबे का कड़ा पकड़ा है और सारी रात गिड़गिड़ा कर दुआएं की हैं, सारी रात, कि अल्लाह हर कोई अपने घर की हिफाजत करता है। दुआ में यह बताया कि अल्लाह हर कोई अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आपके बैतुल्लाह की, आपके घर की हिफाजत कर सकें। आप अपने घर की हिफाजत खुद कर लें। और इसी तरह फरमाया जो स्लेब वाले आ रहे हैं, जो ईसाई आ रहे हैं, उनकी ताकत, उनका स्लेब आपकी ताकत के मुकाबले में गालिब नहीं आ सकता। आप बस हमारी दुआ को कबूल फरमा लें। फिर दूसरे दिन अबरहा ने लश्कर को तैयार किया और काबे को ढाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। काबे को गिराने के लिए उसने बड़े बड़े हाथी साथ लाए थे अपने, बहुत बड़े बड़े हाथी, क्योंकि उस जमाने में हाथियों का रिवाज था। हाथी एक बहुत बड़ा ताकतवर जानवर समझा जाता था। और उसी तरीके से उसके साथ एक हाथी था, खास तौर पर उसका नाम था महमूद, हाथी का नाम था, बड़ा ताकतवर हाथी था। तो उसने प्लानिंग ये की कि हम बड़ी बड़ी जंजीरें काबे के सुतूनों में बांध देंगे और फिर एक सुतून, जंजीर का एक टुकड़ा हाथियों के पैर में बांध देंगे। जैसे ही हाथी आगे निकल जाएगा तो काबा बहुत ही आराम के साथ नीचे गिर जाएगा, हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे ही कर लिया। अब जैसे ही हाथी को मंगाया, जैसे ही हाथी को
आगे चलने को कहा जंजीर बांधकर, अब हाथी नहीं हिल रहा। हाथी ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना दाएं ना बाएं। हाथी जिस सिमत में काबे को गिराना चाह रहा है उस सिमत में नहीं जा रहा, बाकी तीनों सिमतों में जा रहा है। यमन की तरफ भेज रहे हैं हाथी को, हाथी जा रहा है। जुनूब की तरफ भेज रहे हैं मसलन, जा रहा है। मशरिक की तरफ भेज रहे हैं, जा रहा है। मगरिब की तरफ नहीं जा रहा, जो का उसके करने का काम है। और बहुत ज्यादा जोर लगाने के बावजूद हाथी अपना काम नहीं कर रहा। और देखते ही देखते अब हाथी अपना काम कर ही नहीं पा रहा। इतनी ही देर में देखते हैं कि समंदर की तरफ से परिंदों का एक घोल निकल कर आ जाता है। एक परिंदों की जमात, एक छोटे छोटे परिंदे जो कबूतर से कुछ छोटे होते हैं, एक परिंदों का लश्कर आ जाता है और उन पर ईंट फेंकने लग जाता है। और वो ईंट ऐसा काम करते हैं कि जिस हाथी बाण पर एक कंकर गिर जाती है उसका काम तमाम कर देती है। और इसी तरीके से जितने भी हाथी बाण थे, जितना भी लश्कर था, सबके सबको एक एक कंकर जो उस अबाबिल परिंदों के मुंह में था, वो एक कंकर उनको काफी हो जाता था। जिस पर गिरता उसका काम तमाम, जिस पर गिरता उसका काम तमाम। तो ऐसे ही करते करते वो सब के सब हलाक हो गए। कुछ तो वहीं हलाक हो गए, कुछ फिर जख्मी होकर रास्ते में निकल गए, और कुछ फिर दोबारा यमन पहुंचकर हलाक हुए। अबरहा खुद वहां हलाक नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनको बड़ी सजा देनी थी उनको वहां नहीं मारा। अबरहा के साथ ये मामला हुआ कि वो रास्ते में जख्मी हुआ, और जख्मी हुआ, उसके जिस्म में जहर सरायत कर गया, जहर चढ़ गया। और जहर ऐसा चढ़ गया कि उसके जिस्म के जो आज़ा थे वो एक एक करके गिरने लगे। कभी उंगली गिर जाती, हाथ गिर जाता, पैरों के टुकड़े गिर जाते। इसी तरीके से आखिर में सीना फटकर टुकड़े टुकड़े करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको हलाक कर दिया। और ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से, आपकी पैदाइश से तकरीबन 50-55 दिन पहले पेश आया। और इसी तरीके से उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपाहिज हो गए वही मक्के में, और अंधे हो गए। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने इनमें से 2 शख्सों को खुद अपनी आंखों से देखा था, जो वाक़या फील में अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए थे। एक अंधा हो गया था और दूसरा अपाहिज बन गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी वाक़ये की याद ताजा करके कुफ़ारे मक्का को उसका एहसान याद दिलाया। मैं अब आगे पढ़ता जाता हूं, उसकी तशरीह करता जाता हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अलम तरा कैफा, क्या तुमने नहीं देखा। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं ना, यार तुम्हें नहीं पता क्या हुआ घर में, यानी किसी यकीनी बात का तज़किरा करना हो, ऐसी बात जो तुम्हें वाकई पता होनी चाहिए, अभी तो हुई है, कल की तो बात है। तो कहते हैं अलम तरा कैफा, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुमने नहीं देखा। मक्का वालों को कहा जा रहा है, कैफा फ़अला रब्बुका, कैसा सुलूक किया तुम्हारे रब ने, कैसा सुलूक किया तुम्हारे रब ने बि अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। हाथी वाले कौन थे? अबरहा का लश्कर था। अबरहा के लश्कर और फौज का क्या नाम था? अस्हाबुल फील। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी क्या हालत हो गई थी, तुम तो मगलूब हो गए थे, तुम तो रो रो कर गिड़गिड़ा कर मुझसे दुआएं मांग रहे थे। और फिर जब हमने तुम्हें शिकस्त से बचाया, तुम्हें फतह दी और सारी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन कर दिया कि भी बैतुल्लाह के मालिक, काबा मुकर्रमा के मुतवल्ली, मक्के में रहने वालों को अल्लाह ने क्या कर दिया, एक बहुत बड़े लश्कर के मुकाबले में भी पूरी दुनिया में बात फैल गई। मक्के से बाहर भी पूरी दुनिया में बात फैल गई कि भाई जो काबे पर हमला करने आ रहे थे, अल्लाह ने उनके साथ ऐसा कर दिया। तो कुरैश वालों का बड़ा नाम हो गया ना। तो अल्लाह उनको यही एहसान याद दिला रहे हैं, हमने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया। तो जिस अल्लाह ने अपने काबे को महफूज रखा, ये बात अपने ज़हनों में बिठा दो, जिस अल्लाह ने अपने घर को महफूज रखा, वही अल्लाह अपने हबीब को भी महफूज रख सकता है तुम्हारी चालों से। वही उसी, यानी तुम्हारी हालत अबरहा से कुछ कम नहीं है। अबरहा ने भी यही किया था ना कि भाई बहुत बड़ा लश्कर देखकर मुट्ठी भर लोगों के मुकाबले के लिए आ गया था। तो तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, जो उनके साथी हैं, वो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन तुम सारे बड़े बड़े सरदार मिलकर इनका मुकाबला कर रहे हो। तो याद रखो, जो अल्लाह ने अबरहा और उसके असहाबुल फील लश्कर के साथ किया था, वही तुम्हारे साथ भी हो सकता है, वही कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो लिहाजा होशियार रहो। इसी तरीके से आगे फरमाया, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या नहीं कर दिया तुम्हारे रब ने उनके मंसूबे को बेकार,
क्या तुम्हारे रब ने उनके मंसूबे को बेकार नहीं कर दिया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या तुम्हारे रब ने उनके मंसूबे को बेकार नहीं कर दिया? बहुत बड़ा मंसूबा लेकर आया था ना। कैद अरबी में कहते हैं मंसूबे को, मकर को, फरेब को, किसी भी प्लानिंग को अरबी में कहते हैं कैद। तो कहते हैं कि भाई उनका क्या मंसूबा था कि भाई मैं काबे को गिरा दूंगा, सारे लोग फिर यमन में आएंगे, यहां हज करेंगे, जो बहुत बड़ा तिजारत का मरकज मक्का बन गया ये खत्म हो जाएगा, सारे माशी फवायद हमें हासिल हो जाएंगे, सियासी फवायद हमें हासिल हो जाएंगे। बड़ी बड़ी प्लानिंग की थी। तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं वमाहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा। अल्लाह पाक फरमाते हैं उन काफिरों को प्लानिंग करने दो, इन्नहुम यकीदून कैदा, वो भी एक प्लानिंग करते हैं, व अकीदु कैदा, एक प्लानिंग मैं भी करता हूं। वमाहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, फिर अनकरीब उनको उनकी प्लानिंग का पता चल जाएगा। और एक जगह फरमाया इन्ना कैदी मतीन, मेरी प्लानिंग, मेरा मंसूबा बड़ा सख्त है, बहुत मजबूत है। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, अल्लाह उनको ऐसे पकड़ेगा जहां से उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में क्या करते हैं, इंसान को बाज़ औक़ात ढील देते हैं, शायद कि अब सुधर जाए, शायद कि अब तौबा कर ले, शायद कि अब रास्ते में आ जाए। लेकिन इंसान बातों पर बातें बनाता है, मंसूबे पर मंसूबे बनाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तुम्हारे मंसूबे, लेकिन जब मैं अपना मंसूबा तुम्हारे सामने पेश करूंगा तो तुम्हारे सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह की प्लानिंग सबसे पहले, अल्लाह का मंसूबा सबसे ताकतवर, अल्लाह की तदबीर सबसे अहम। जैसे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, यानी आप एक मर्तबा सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे तो आपने एक लकीर खींची, और एक लकीर खींची छोटी सी, और उसके बाद फिर दूसरी लकीर खींची जो उससे थोड़ी बड़ी थी। तो जो छोटी लकीर थी आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इंसान की मौत है, जहां ये लकीर खत्म हो रही है वहां इंसान की मौत आ रही है। और फरमाया जो दूसरी लकीर है ना, ये जो आगे जा रही है, ये इंसान की ख्वाहिशात है, ये इंसान की ख्वाहिशात है जो उसकी मौत से भी आगे जा रही है। उसको पता भी नहीं है मैं इतनी ख्वाहिशात लेकर बैठा हुआ हूं जो मेरी मौत की मुद्दत से भी ज्यादा हैं। तो भी हमारी जितनी भी तवक्कुआत हों, जितने भी मंसूबे हों, सब के सब मंसूबों में सबसे बड़ा मंसूबा हमारा दीन होना चाहिए, सबसे बड़ा मंसूबा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मंसूबों के जरिए कैसे कैसे अपनी मखलूक की हिफाजत करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीजें हमारी नजर में अच्छी भली मालूम नहीं होती, लेकिन अल्लाह उनको अच्छा कर देता है। अब देखे ना, अबरहा का लश्कर रास्ते में आ रहा था, हर किसी को शिकस्त दे रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी कर सकते थे कि ये अबाबिल का लश्कर उसके ऊपर यमन में ही आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये भी कर सकते थे कि रास्ते में उसको कोई और शिकस्त दे देता, ऐसा भी नहीं किया। उसको मक्के में लाया, अपने घर में बुलाकर वहां जलील किया। तो बाज़ औक़ात कुछ चीजों का होना हमारी नजर में अच्छा नहीं होता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत के मुताबिक से बिल्कुल अच्छा होता है। तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जंगल में था, तो मैं देखता हूं कि एक बिच्छू जा रहा है, बहुत तेजी के साथ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार यकीनन अल्लाह की हिकमत होगी, ये कहां जाता है, क्या करता है, आज मैं इसको देख कर रहूंगा। तो बुजुर्ग ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम था, उस बिच्छू के पीछे निकल गए। वो जंगल से निकलता पानी की तरफ नदी के अंदर उसने डुबकी लगाई, तो बुजुर्ग भी चले गए साथ साथ। अब जब नदी से वो निकला तो देखता है कि जैसे ही दूसरे जंगल में वो घुसा तो देखते हैं कि वहां एक शख्स सो रहा है, वहां एक शख्स आराम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। और उसके ऊपर जो है ना, दरख्त के ऊपर से एक बहुत बड़ा काला नाग सांप आकर उसके ऊपर गिर जाता है, और गिर जाता है। जैसे ही उस शख्स को डंग मारने वाला होता है वो नाग, ये बिच्छू आकर उस नाग को जो है ना डंग मार देता है, और ये सांप वहीं हलाक हो जाता है। और वो शख्स जो है ना, जो सांप के असर से मरने वाला था, सेकंडों के फासले से वो बच जाता है। वो देखते थे कि अब बिच्छू से हर किसी को नुकसान का अंदेशा होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की प्लानिंग देखें, बिच्छू से भी फायदे की तदबीर बतलाई। तो ये अल्लाह के करने के काम होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ काम देखने में अच्छे मालूम नहीं होते, लेकिन वाकई बहुत अच्छे होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ काम देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। तो आगे फरमाया
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या नहीं कर दिया उनके मंसूबे को बेकार। और आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो तरीका बतला रहे हैं जिस तरीके से अल्लाह ने उनके मंसूबे को बेकार कर दिया था। वो क्या तरीका था? व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और भेज दिया अल्लाह ने उनके ऊपर परिंदों को। तैरन का तर्जमा है परिंदे, अबाबील झुंड की शक्ल में, यानी सब जमात की शक्ल में थे। भाई इसमें इस गलतफहमी का भी इजाला कर दूं कि अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं है। अबाबील अरबी में कहते हैं कोई भी वो परिंदे जो साथ साथ चलते हैं। बहुत से परिंदे एक साथ जब चलते हैं तो उनको अबाबील कहते हैं। अबाबील अलग से कोई परिंदा है ही नहीं, इसीलिए परिंदे के लिए अलग लफ्ज लाए तैरन। व अरसला अलैहिम, और भेज दिए उन पर तैरन परिंदे, अबाबील झुंड की शक्ल में, जमात की शक्ल में। वो परिंदे छोटे छोटे परिंदे थे, बिल्कुल छोटे परिंदे। और उन परिंदों ने क्या किया? तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वो फेंक रहे थे उन पर कंकर, यानी कच्ची मट्टी के। एक होता है ना पत्थर, बहुत मजबूत पत्थर होता है, लेकिन देखा है आपने जो रेत होती है ना, रेत पर पानी गिर जाए, उस पानी के नतीजे में वो एक पत्थर बन जाता है छोटा सा, जिसको गिल कहते हैं उर्दू में, है? तो वो पत्थर फिर उस पर धूप लग जाती है, बहुत सख्त हो जाता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जोर दे दे तो वो टूट जाता है। तो अल्लाह ने कोई बहुत बड़ा मजबूत पत्थर भी नहीं भेजा, बहुत ही कमजोर पत्थर भेजा। एक पत्थर परिंदे के चोंच में होता था, 2 पंजे में। हर परिंदे के मुंह में उसके पास 3-3 कंकर होते थे, 2 पंजों में, 1 मुंह में, बहुत ही छोटा कंकर। वो एक कंकर जो है ना, जैसे ही गिरता वो गोली बम, एटम बम का काम कर देता था। जिस हाथी बान पर गिरता उसके सर के ऊपर से गिरता, हाथी के नीचे से निकलता, उनको नेस्तो नाबूद कर देता, बिल्कुल बोसीदा खत्म कर देता। तो देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो बहुत बड़ी तदबीर भी कर सकते थे, बहुत बड़े खतरनाक हथियार भी भेज सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। अपनी बहुत मामूली मखलूक को भेजा उनके काम करने के लिए, और ये सबक दिया कि भी मैं जब अपनी मामूली मखलूक के जरिए इतना बड़ा काम कर सकता हूं तो फिर बड़े बड़ी मखलूक को इस्तेमाल करूं, तब क्या होगा? अंदाजा लगाओ, तब कैसे क्या हो सकता है? ये तो हमने अपनी मामूली मखलूक को भेजा है, जो बहुत छोटी मखलूक है, तुम्हारी नजर में बहुत कमजोर मखलूक है। तो अल्लाह ये समझा रहे हैं कि भाई असल में करने वाली जात न गोली है, न बम है, न हथियार है, न वसाइल है। असल में करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह ने चाहा तो वो कंकर उनके लिए अजाब का जरिया बन गया, अल्लाह ने चाहा तो वो कंकर उनके लिए बम से ज्यादा खतरनाक बन गया, अल्लाह ने चाहा तो वो एक मामूली सा पत्थर जो कंकर की शक्ल में था उनके लिए नेस्तो नाबूद होने का जरिया बन गया। तो मकसद क्या हुआ? मकसद यह हुआ कि असल ताकत उस पत्थर में भी नहीं थी, असल ताकत उन परिंदों और पत्थरों को भेजने वाले में थी। असल ताकत किसकी है? उस अल्लाह के है जो असबाब के जरिए काम कराता है, लेकिन हकीकत में कौन होता है? हकीकत में मुसब्बिबुल असबाब होता है। तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समझा दिया कि भी चीजों के जरिए दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तुम ये देखो कि इन चीजों के पीछे असरअंदाज कौन है? असरअंदाज कौन है? देखें, आग जला देती है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला रही। पानी डुबो देता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं डुबो सका। तलवार असर कर देती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हजरत अली के घर में पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम उनकी नजरों से ही ओझल हो गए। तो ये सारा का सारा क्या है? ये अल्लाह की ताकत है। अल्लाह पाक समझाते हैं कि भी आग से कुछ नहीं होता, आग के अंदर जो हरारत है वो हमने रखी है, हम चाहेंगे तो ये जलाएगी, ना चाहेंगे नहीं जलाएगी। पानी में हम डिबोने की सलाहियत तो है, लेकिन ये सलाहियत हमने रखी, हम चाहें तो यही पानी ना डुबोए। तलवार में काटने की सलाहियत है, लेकिन हम चाहें तो किसी पर तलवार के 100 वार पड़े, उसे कुछ भी ना हो। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया मशहूर है ना, कि उन्होंने जब एक मकाम पर उन्होंने मुज़ाकरात करने चाहे तो उन्होंने देखा कि दुश्मनों का जो लश्कर है उनके पास एक थैली है। तो उन्होंने कहा, भाई ये क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा, यार हम मुज़ाकरात करने आए, हमें अगर बहुत ज्यादा शिकस्त हो गई तो हमने ये सोच रखा है कि हम यहां इस थैली से जहर निकालेंगे, खा लेंगे, मर जाएंगे, फिर दोबारा घर नहीं जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने उनसे कहा कि ये जहर तुम्हें मौत दे सकता है, तुम्हारा ये अकीदा है? उन्होंने कहा, ये तो 2 मिनट में मार देता है।
یہ ایسا زہر ہے ہمارے پاس جو 2 منٹ میں مار دیتا ہے. تو خالد بن ولید نے کہا مارنے والی ذات زہر نہیں ہے، مارنے والی ذات اللہ کی ہے. الذی یمیتنی ثم یحیین، جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، میرا رب وہ ہے جو مجھے موت بھی دیتا ہے، مجھے زندہ بھی کرتا ہے. تو انہوں نے کہا واقعی اگر تم سمجھتی ہو کہ یہ زہر موت دینے والا ہے تو میں ابھی تمہیں اس کی حقیقت سمجھا دیتا ہوں. ان کے ہاتھ سے زہر کی تھیلی لی اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور وہ پورا کا پورا زہر کھا گئے. میں اس اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں کہ جس کے نام سے کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی آسمان و زمین میں. انہوں نے یہ دعا پڑھی اور وہ زہر کھایا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں سب کے سب لوگ کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے. تو اللہ نے زہر میں مارنے کی طاقت رکھی ہے، لیکن اللہ چاہیں گے تو زہر مارے گا، نہیں چاہیں گے نہیں مارے گا. تو کنکروں میں مارنے کی صلاحیت، ختم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے رکھ دی تھی اور ان کو انہی کنکروں کے ذریعے ختم کر دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینک رہے تھے ان پر پتھر کنکریوں کے، چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے. اب یہ یہاں دیکھیں ترمی لفظ لایا ہے، ترمیہم، عربی میں یہ لفظ نکلا رمی سے. رمی کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، اور رمی عربی میں کہتے ہیں اس نشانے کو جو بالکل ٹکا کر نشانے پر لگتا ہے. یعنی وہ پرندے جو پتھر پھینک رہے تھے نا، وہ یہاں وہاں نہیں گر رہے تھے، ایک ایک ہاتھی بان پر ایک ایک پتھر گر رہا تھا، ہر پتھر نشانے پر لگ رہا تھا. اور ان پتھروں کا سائز کیا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا سائز جو چنے کی دال ہوتی ہے نا وہ سائز تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ مسور کی دال کا سائز تھا. اب آپ اندازہ لگائیں. اور پھر ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر اللہ نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. کَعَصْفٍ، عصف کہتے ہیں بھوسے کو، مأکول کھائے ہوئے. آپ دیکھتے ہیں جانور جب بھوسا کھاتا ہے، بھوسا پہلے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں. لیکن جب جانور بھوسا کھا لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ بھوسا کیسا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی لمبا دانا نکل رہا ہوتا ہے، کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کوئی بالکل پسا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ نے ان غرور کرنے والے لشکر کو کیا کر دیا؟ بالکل چکنا چور کر دیا. جو اللہ کے مقابلے میں، جو غیبی طاقت کے مقابلے میں اپنی طاقت کا نشہ لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کو دکھا دیا. اللہ نے دکھا دیا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، بڑی بڑی باتوں کرنے والوں کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہ کسی کی حکومت چل سکتی ہے، نہ کسی کا منصب چل سکتا ہے، نہ کسی کی طاقت چل سکتی ہے. جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو آج بھی جو بڑی بڑی حکومتیں موجود ہیں، آج بھی جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، ان کو بھی اس سورہ مبارکہ سے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگا لینا چاہیے. کیسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ اسرائیل والے، کیسا ظلم کر رہے ہیں فلسطین پر، کیسا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، کیسی کیسی بڑی باتیں کر دیتا ہے امریکہ، رشیا. وہ سب کی سب بڑی باتیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ ہتھیاروں کی بنیاد پر. ہمارے پاس یہ میزائل ہے، یہ چیزیں ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں مٹھی بھر لوگ جو افغانستان میں موجود ہیں، جن کے پاس نہ کوئی خاص اسلحہ ہے، نہ ہی اپنی دفاع کرنے کا کوئی خاص انتظام ہے. اللہ پاک بار بار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا ہے اتنی بڑی سپر طاقت کو. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ان کو ترقیاں دکھاتا ہے. چاہے ان کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے مالک الملوک ہونے پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.